evolution. So in human evolution, several steps are there. Okay, several steps are there, and you have to remember the most importantly 8 steps. Okay, eight different stages are there, phases are there in human evolution. And first one is Dryopithecus, and here the Pithecus word meaning ape like. Okay, Pithecus means ape like. Then Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, Cro-Magnus man, and Homo sapien, which also called today's modern man. Okay, this 8 you have to remember, memorize it, or else when we are reading or studying about and discussing about the each and every characteristic of the particular phase of human evolution, automatically you remember this headings. So first we go with Dryopithecus. Dryopithecus and Ramapithecus both was more like ape. Okay, they are ape like organisms. So ape, अगर तुम बंदर वगैरह को देखते हो, their body is completely covered with hair, and they have mungal mouth. With mungal word means big mouth. Okay, and they are knuckle walkers. These are the keywords you have to remember. Ramapithecus, ape-like organisms, and 15 million years these organisms are appeared. So key points what you have to remember is they are ape-like, 15 millions, okay, knuckle walkers, and their mouth is mungal and big mouth, okay, and here complete body is covered with hair. These are the key points. Remember this about this. And Dryopithecus africanus is a common ancestor for apes and man. इसका मतलब ये है कि बंदर जो रहते हैं, जो आज की चिंपैंजीज, गोरेला एंड जो भी ऑर्गेनिजम्स बंदर वाले जो है वो भी ड्रायोपिथेकस अफ्रीकानस से आए. एंड जो मैन है, ह्यूमन्स है, दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर. द कॉमन एंसेस्टर इज ड्रायोपिथेकस अफ्रीकानस. ओके, एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस में एक स्मॉल डिफरेंस यही है कि बोथ में दो कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉमन ओनली. द वन डिफरेंस इज ड्रायोपिथेकस इज मोर लाइक मैन and Ramapithecus is more like Dryopithecus is more like ape and Ramapithecus is more like man. This is a keyword. Okay, and one more thing is Ramapithecus का मतलब क्या है? मतलब रामा मतलब we know that in India रामायण में पढ़ा होगा हमने सीताराम. Okay, अगर सीताराम movie also is was Ram is the like Indian legendary hero, the very hero play in Indian. So Rama means same common राम को बोला जाता है. और ये इंडिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये शिवालिका हिल्स जो थे वहाँ पर इनके फॉसिल फ्यूल्स मिले थे हमें, एंड अफ्रीका में भी मिले थे, बट शिवालिका हिल्स में मिले थे. इसको रामापिथेकस बोला जाता है. दिस इज अबाउट ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस. ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बारे में अगर तुम्हें याद रखना है तो ये याद रखना है कि कब, अगेन यहाँ पर 4 to 2 million years ago, that is 15 million years ago, this is 4 to 2 million years ago. एंड कहाँ पर इनके फॉसल पाए गए थे? द फॉसल्स आर फाउंड ईस्टर्न ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका. ओके, ईस्टर्न ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम इन्हें पाया गया था. एंड की पॉइंट ये है कि ह्यूमन एवोल्यूशन अरोजेस फ्रॉम ऑस्ट्रेलियोपिथेकस. मतलब यहाँ से ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. ओके, so if anyone asks from human evolution started from where, means Australopithecus, not Ramapithecus. Okay, remember this. And then they consider as ape man. This is also ape man. Okay, what you have to remember, Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, they are ape mans. Okay, ये बंदर जैसे ज़्यादा दिखते थे. Okay, but Homo habilis से जो था ये फर्स्ट ह्यूमन टाइप मैन. ओके, ह्यूमन जैसे थे. ओके, एंड दे आर द कनेक्टिंग लिंक. अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो था वो कनेक्टिंग लिंक था एप से ह्यूमन में. ओके, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप मैन, considered as ape man, and connecting link between the apes and mans.
फर्स्ट टाइम, दिस इज ऑल्सो कीवर्ड, फर्स्ट टाइम लंबर कर्वेचर में पाया गया था. इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 500 cc. तो इफ एनीवन आस्क ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस का कितना है, सेम 500 cc. ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दिस ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज फर्स्ट टाइम इनका जो फॉसिल्स थे, द फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड बाय रेमोंड डर्ट. ओके, रेमंड डर्ट ने इनके फॉसिल्स फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था एंड डिस्कवर किया था. सो अगर नहीं दिख रहा है तो रेमोंड डर्ट. ओके, और दे फाउंड 5 and 6 years aged बेबी का था वो. एंड वेयर वी फाउंड टोंग रीजन एंड इन सम अदर रीजन, टोंग रीजन ऑफ अफ्रीका. सब कुछ अफ्रीका ही स्टार्ट हुआ यार, हमेशा याद रखियो. लेटर दे नेम्ड टोंग बेबी, इसको बोला जाता है. ओके, टोंग बेबी भी बोला जाता है. एंड अगेन लेटर अनदर पर्सन जोहानसन. ओके, जोहानसन, अब मेंडल जोहानसन, ग्रीगर को याद मत रखना, दिस इज जोहानसन. सो जोहानसन ने फिर फीमेल फॉसिल्स को डिस्कवर किया था एंड उसको नाम रखा गया लूसी. वेरी इंपॉर्टेंट, लूसी यू हैव टू रिमेंबर, एज यू हैव टू रिमेंबर, विच रीजन टोंग बेबी से बोला जाता है एंड हु डिस्कवर्ड व्हाट. ओके, एंड देन होमो हैबिलिस के बारे में बात करते हैं. तो होमो हैबिलिस जैसे बताया था, फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड्स. Okay, that 3, Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus are more like ape, and this one is the first human-like hominids and is Homo habilis. Okay, और ये कब थे, 2 million years. फर्स्ट हमने देखा Dryopithecus, Ramapithecus 15 million years ago. The next one is how many years? 4 million years ago, and this one is 2 million years ago. सेम ईस्टर्न ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका में इनके फॉसिल्स को डिस्कवर किया था. एंड दे आर रेजिड्यूज इन केव्स में रहते हैं ये प्रोगैंथस फेज से. मतलब यहाँ से होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस जो थे वो उनका प्रोगैंथस फेज था. ओके, द पोजीशन ऑफ द फेज हाउ इट इज. ओके, देन स्किलफुल मैन, दे आर व्हाई दे आर कॉल्ड अदर नेम्स. यू समटाइम्स दे आस्क विच वन इज अ टूल मैन, इनको टूल मैन बोला जाता है, स्किलफुल मैन बोला जाता है. ओके, स्किलफुल मैन. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इनको हैंडी मैन भी बोला जाता है. वाई मीन्स दे यूज स्टोन्स, शार्प स्टोन से शार्प टूल्स बनाते थे. एंड दिस टूल्स दे डोंट यूज, दे यूज फॉर हंटिंग. एंड दिस हंटिंग अपने आप को बचाने के लिए करते थे. दे डोंट ईट मीट. ओके, they don't eat meat, they are fruit eaters. Okay, he hunted with sharp stones but ate only fruits and they don't know the use of the fire. Okay, उनको फायर का कोई यूज नहीं पता था. एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज क्रेनियल कैपेसिटी. मतलब ब्रेन, क्रेनियल कैपेसिटी मतलब कितना ब्रेन की कैपेसिटी है कि ब्रेन को उसके अंदर रखा सकता है. ब्रेन मतलब स्कल कैपेसिटी कितनी, क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 800 cc. ओके, अगर यहाँ पर देखा जाए जैसे पॉइंट्स लिखे हैं, एप्स 500 cc, जो भी वो 3 थे, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस. होमो हैबिलिस 650 to 800. नेक्स्ट हम होमो इरेक्टस पढ़ेंगे, उनका 900 cc रहेगा. होमो निएंडरथैलस 1400 cc. एंड सबसे इंटेलिजेंट थे जो गायब हो गए, मर गए, वो खत्म